let us discuss few more dimensional formula. Dimensional formula of solid angle. Now see, there are two supplementary quantities we are learning: solid angle and plane angle. Solid angle and plane angle both have dimensional formula m0 l0 t0. Dimensional formula of solid angle is m0 l0 and t0. If it is a plane angle also, then it is also a dimensional formula m0 l0 and t0. Okay, any mathematical constant has a dimensional formula m0 l0 t0. Now dimensional formula of light year, that light year is a unit of distance. Light ray takes 3 into 10 raised to 8 meters per second. It is a velocity of light, and it takes 1 year to travel the distance, and that distance is known as 1 light year. It is 1 light year. So light year, it is a unit of distance. So distance का जो भी dimensional formula होगा क्या होगा? See, L1 will be the dimensional formula of लाइट ईयर. पहले हमें ये ईयर जो दिखता है ना, ये ईयर देख के हमें ऐसा लगा कि भाई नहीं, ये तो टाइम का है, बट इट इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम. ओके, लेट्स गो ahead. Now see, according to quantum theory, the energy, E of a photon of frequency f is given by E is equal to hf. E is equal to hf, where h is Planck's constant. Now what is the dimensional formula of h? What is the dimensional formula of h? कैसे करेंगे? So energy E is equal to hf. So h को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओ तो एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी हो जाएगा. नाउ फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है ना, फ्रीक्वेंसी का यूनिट, दैट इज सेकंड इनवर्स. तो t-1 होगा डायमेंशनल फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का. ऊपर है एनर्जी, सो एनर्जी डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी m1 l2 t-2. अब तक तो याद रह गया होगा ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी. m1 l2 t-2 is the dimensional formula of energy, and frequency का होगा t-1. इसको सिंप्लीफाई करो, so it is m1 l2 and t. here it is -3, ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, so it is -1. कैंसिल होगा एक, so Planck's constant का यूनिट होगा m1 l2 t-1. so डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, आंसर क्या आएगा यहाँ पे? B will be the answer. So when this t raised to -1 go up, so it will become t+1. So -2 plus 1, it is -1. So answer will be m1 l2 t-1. Let's derive few more dimensional formula. Now if the distance between two charges is 2a, then the dipole moment of this system is given by P is equal to 2aq. It is 2aq, where q is charge. So dimensional formula of dipole moment क्या होगा? Dipole moment, so P is equal to basically distance into charge है ना. चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हमने बोला था, क्या था? a1 t1, और डिस्टेंस का क्या है? l1. सो आंसर क्या आएगा? m0 l1 t1 and a1. so m0 l1 t1 a1, where is the answer? m0 l1 t1 a1. so D is the correct answer. See here, it is not importance of 2. 2 is a mathematical number, so 2 का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करने में. Are you getting my point? So 2 के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हमें नहीं लेना है.
नाउ देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे P इज इक्वल टू 2A इंटू क्यू। इज दैट क्लियर? समझ में आया सबको? ओके चलो, सो M0L1T1, लेट्स मूव अहेड। One more MCQ. The gravitational force between two masses M1 and M2 separated by a distance R is given by F is equal to G M1 M2 upon R square. Now if F is force, M1 M2 are masses, R is distance, then dimensional formula of G अभी कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए एक काम करते हैं, हम नया एक पेज ले लेते हैं। देखो यहाँ पे, so formula is F is equal to G M1 M2 upon R square. Now F is what? Force. Force का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? M1 L1 T minus 2. M1 का क्या होगा? मास है तो M1. M2 का क्या होगा? M1. एक देखो केजी में ही होगा ना, ये भी केजी में होगा, ये भी केजी में होगा, ये भी केजी में होगा, सो M1. R स्क्वायर है, सो इट इज L2. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्क्वायर है तो so let's make subject of formula to G first. So G is equal to FR square upon M1 M2. FR square upon M1 M2. F का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करो, M1 L1 T minus 2. Here it is L2 upon M1 M1. एक इसका M1, एक इसका M1. So M1 L1 T minus 2 L2 upon M2. Now see, M का 1 पावर है, यहाँ पे M का 2 पावर है, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, M1 minus 2 L1 L भी हो जाएगा 1 plus 2, यहाँ पे L का भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, T minus 2. सो आंसर आएगा M minus 1 L3 T minus 2. ऐसा कोई आंसर है हमारे पास? So A is the correct answer. Okay, are you getting my point? So let's go and check the solution. Okay, yes, correct answer is there. Just we need to focus. Let's do few more. Can you do this? I am giving you time that from U is equal to 1 half Li square. Obtain dimensional formula of L. Now what is L? ये L कौन सी क्वांटिटी है, कहाँ पढ़ने को आती है, ये अभी आपको टेंशन नहीं लेना है. इफ यू आर इन 11th स्टैंडर्ड आपको ये टेंशन नहीं लेना है. यस अगर हम 12th में होते तो बराबर है, बट 11th स्टैंडर्ड में हम फॉर्मूला से, डायमेंशनल फॉर्मूला से डिराइव तो कर सकते हैं उस क्वांटिटी का. सो U इज एनर्जी, I इज करंट, बट हियर इट इज करंट स्क्वायर. सो L को सब ये 1 हाफ कैलकुलेट नहीं करना है, सो आपको यही याद रखना है, U इज इक्वल टू Li स्क्वायर. नाउ लेट्स मेक सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला टू L एंड लेट्स गेट दिस आंसर. आपका ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो तो चलो, तो वरना मैं करवाता हूँ. Let's make L subject of formula to L. So L is equal to U upon I square. Energy का है M1 L2 T minus 2 upon I का है A2. So it is M1 L2 T minus 2 A minus 2. ये ऊपर जाएगा तो A minus 2 हो जाएगा. समझ में आया आपको? Now let's derive this. Okay. R का फॉर्मूला डिराइव करना है. फॉर्मूला is W is equal to I square RT. Okay. Here W is equal to work or energy. Here it is energy. I square is square of current. R का फाइंड करना है हमें, and T is time. ओके, सो R को सब्जेक्ट को फॉर्मूला करो तो क्या हो जाएगा? W अपॉन I स्क्वायर T हो जाएगा. चलो तो ट्राई करो तो ये, यहाँ पे एनर्जी का पुट करो, यहाँ पे A2 पुट करो, यहाँ पे T1 पुट करो. You should get this answer. એનર્જી નું ડાયમેન્શનલ ફોર્મ્યુલા થઈ જાય M1 L2 T minus 2 ऊपर नीचे A2, this is T1, so M1 L2 T minus 3 and A minus 2. This is the answer. Okay, चलो
यहाँ पे दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। ये नहीं करते, ये बाद में करते हैं, अगर आपको करना है तो ट्राई करना। ये करते हैं, चलो। P is equal to power is equal to V square by R. Power is equal to V square by R. Okay. Obtain the dimensional formula of V. हमें फॉर्मूला फाइंड करना है V का। सो एक काम करें हम, V स्क्वायर है ना, सो V स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू आर। सो पावर का क्या होगा, M1 L2 T माइनस 3। रेजिस्टेंस का क्या अभी हमने डिराइव किया था, बोलो तो। रेजिस्टेंस का क्या है, M 1 L2 T minus 3 A minus 2। इसको सिंप्लीफाई करो जरा, तो ये क्या होगा, M1 प्लस 1 M2 L2 प्लस 2 L4, T का क्या होगा, T माइनस 3 दैट इज 6 एंड A का हो जाएगा माइनस 2। ये पूरा ये स्क्वायर है तो ये डबल आ गया कि नहीं आंसर, तो इसका हाफ करोगे आप, हाफ क्या होगा, M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1, पूरा हाफ करोगे तो आपको आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया V का। समझ में आ रहा है, ऐसे डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे करना है। ओके, बेसिकली डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, फॉर्मूला। देन जिसका भी फाइंड करना है उसको सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओ, सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाया। तीसरा स्टेप क्या होना चाहिए, जो बाकी की क्वांटिटी है रेस्ट क्वांटिटीज, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। देन पुट ऑल द डायमेंशनल फॉर्मूलाज एंड दैट सिंप्लीफाई, पूरा जो आंसर आएगा वो सीधा फोर्थ स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द स्टेप टू गेट एनी डायमेंशनल फॉर्मूला। फॉर्मूला याद करो, बाकी की क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूलाज को अच्छे से वहां पे रखो और उसको सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी क्वांटिटी। Are you getting my point? So today we have discussed lot of dimensional formulas. There are lot of quantities we have studied which are going to study in 12th standard। 12th स्टैंडर्ड में आने वाली क्वांटिटीज भी हमने आज लर्न की। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई हमें 12th में का 12th में ही आएगा, अगर हमें क्वांटिटीज उसकी पता है कि इसमें कौन कौन यूज हो रहा है, सो वी कैन डिराइव इट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?